write? Fair notebook. Okay. Get ready. Get ready. Now look at this. Look at the screen. Then I am ready for the task. Okay. Now, first of all, what is the symbol of rupees? कहते आ जाना था. Who is talking? पूछना कितने बजे अगर होगा तो फोन कर दो. कौन दिखाना? Excuse me, ma'am. Now, बेटा अपनी तरफ से बहुत आवाज आ रही है. Now look at it. We can write rupee also like this. Rupee. Like this also. It is rupee 1. We can write like this. Just like this. Rupees 5. Okay. Now we will do exercise 3.1. Everybody will start. 3.1. Question number 3 is convert the following into paisa. This question is given in your book. You will write from your book. Leave one line. Later on you can write. Convert the following into paisa. A part. We will do one question. Rupee 2. First question is rupee 2. We have to convert into paisa. How will we do? How will we do? First of all, we write 1 rupee. How many paisa in 1 rupee? 100 paisa. P-A-I-S-E. 1 rupee is equal to 100 paisa. Now, अभी हमें 2 rupees को पैसा में बनाना है. How will we do it? We will bring 2 rupees down. We will write like this. 2 rupees is equal to 2 into 100 paisa. Paisa I have written here in short form. P-A-I-S-E. I have written in first line. Here I have written in short form paisa. Now, what is the answer? How many paisa is equal to 0, 0? We will put 2 ones are 2. How many paisa? 200 paisa. How many paisa? 200 paisa. Complete this sum. Now, question number 2. We will do one more question. Rupee 4.56. 4 rupees 56 पैसा. अभी हम पैसे को यहाँ 56 को कुछ नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे. What will we do? We will write again 1 rupee is equal to how many paisa? 100 paisa. All of you know. No, हमारे पास कितना rupees है? How many rupees we have? 4. 4 rupees is equal to 4 into 100 paisa. 100 paisa. We got 400 पैसा. 400 पैसा हमारे पास आ गया. तो हमारे पास
क्वेश्चन में कितने पैसे हैं? 56 पैसे हैं। जैसे हम मिनट्स में करते थे उसमें भी हम करते ना प्लस बाद में। नो, वी विल ब्रिंग 50 पैसा डाउन, सॉरी 56 पैसा, 56 पैसा। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 456 पैसा। हमारे पास कितना आंसर आ गया? 456 पैसा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 456 पैसा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट 4 rupees into paisa. We got 400 paisa, and then we will bring down 56 paisa. We have to add. We got the answer 456 paisa. It is the correct answer. Okay. Now, I hope everybody has done. Now we will do one more question. Rupees 80.50 paisa. Again, 1 rupee. 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा। 100 पैसा। नौ, हमारे पास कितने रुपीस हैं? 18 रुपीस। वी हैव 18 rupees is equal to 18 into 100 paisa. We got 100, so 1800, 1800 पैसा। और हमारे पास ऊपर कितने पैसे हैं? 50 पैसा। 50 पैसा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1850 पैसा। 1850 पैसा। First of all, we have to convert rupees into paisa. 1800 paisa we got, and plus in question we have 50 paisa. We have to add 50 paisa. Have you understood? Easy है ना ये? Have you understood? Write in chat box. Have you understood or not? Right? Okay, good. Well done. Well, good. Okay. Now, गुरशेष को समझ नहीं आया? I will repeat again. जिसको समझ नहीं आया अभी सभी सुनेंगे. Look at the screen. My first question is rupee 18.50 पैसा. पहले हमने रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है. तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें मालूम है 1 रुपये में कितने पैसे हैं? 100 पैसे. तो फिर हमारे पास क्वेश्चन में कितने रुपीस हैं? 18. फिर हमने 18 को 100 पैसे से मल्टीप्लाई किया. फिर हमारे पास आंसर आ गया 1800. आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1800. और हमारे पास क्वेश्चन में कितने पैसे थे? 50 पैसे थे. 50 पैसा को भी हमने प्लस किया तो वी गॉट द आंसर 1850 पैसा. अभी आ गया समझ गुरशेष? नाउ अभी आपकी बुक में क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीस. अभी हमने पहले पैसे रुपीस को पैसे बनाया है. अब हमने रुपीस को पैसे में बनाया है ना, सॉरी पैसे में कन्वर्ट किया है. अब हमने पैसों को रुपीस में बनाना है. नाउ लुक एट द स्क्रीन. अभी आप एक लाइन छोड़ देंगे, उसमें से बुक से क्वेश्चन लिखेंगे. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीस. फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट. 600 पैसा. हमारा क्वेश्चन क्या है? 600 पैसा. तो हमने 600 पैसे को रुपीस में बनाना है. तो कैसे करेंगे? अब हमारे पास पैसा है ऊपर, हम लिखेंगे यहां 100 पैसा
इज इक्वल टू 1 रुपी। पहले हमने लिखा था 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, अब लिखेंगे 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 600 पैसा, 600 पैसा, इसको क्या करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे पहले 600, और ये जो 100 है जब हम दूसरी जगह लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाता है, हम इसको नीचे लिखेंगे। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, नीचे यहाँ 100 में कितने जीरो हैं, 2, तो 600 में भी 2 जीरो हैं। हम इन 2 डिजिट्स के बाद, अब ये डिजिट तो इसमें कुछ नहीं है, जीरो है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ₹600, ₹600। हमने इसके बाद पॉइंट लगा देना है 00 के बीच में, तो हमारे पास आ गया ₹600। नीचे 2 जीरो है ना, उसके बाद इसमें पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास आ गया ₹600। राइट, यस और नो, सबको समझ आया? अदरवाइज आई विल रिपीट अगेन। पैसे हमेशा 2 डिजिट्स में होते हैं। अच्छा देखो, अभी मैं एक बार, जिन बच्चों को समझ नहीं आया मैं दोबारा रिपीट करने लगी, अब लिखना बंद कर दो, स्टॉप राइटिंग। पहले हमने रुपीस को पैसे में कन्वर्ट किया, अब हमने पैसों को रुपीस बनाना है। 600 पैसा हमारे पास, तो अब हम 100 पैसे हो हमारे पास, तो हमारे पास 1 रुपी बनता है, 100 पैसे से ₹1 बनता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में कितने पैसे हैं, 600, लिख लिया 600। फिर हमने 600 और ये 100 को हमने इसके नीचे लिखना है, इसका मतलब होता है डिवाइड, मगर हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम ये 2 जीरो हमारे पास, ये 2 जीरो हैं, इसके बीच में हम एक पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास ये 00 हो गया पैसा, पैसा तो है नहीं इधर, मगर ये 6 क्या हो गया, रुपी, हमारे पास आंसर क्या आ गया, ₹6। अभी आ गई समझ? राइट, यस और नो? जिसको समझ आ गई है वो ठीक है, जिसको नहीं आई ओके, अभी आ गई समझ? ओके ओके, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। एकमप्रीत अभी क्या समझ नहीं आया? एकमप्रीत मैं अभी एक और सम करवाती हूँ, वहां से समझो। एकमप्रीत लुक एट द स्क्रीन, स्टॉप राइटिंग। अभी एकमप्रीत, जिसको समझ नहीं आया मैं एक और करने लगी सम। 2368 पैसा, हमारे पास 2368 पैसा है। अब हमारे पास ऊपर पैसा है, तो हमने नीचे भी लिखना है 100 पैसा, 100 पैसे हो तो हमारे पास क्या बन गया, 1 रुपी, 1 रुपी बन गया। $100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। अब हमने 100, ये हमारे पास इतने पैसे हैं, 2368 पैसा है, ये हम नीचे लाएंगे इसको, 2368 पैसा। फिर हमने लिखा 2368 को, इसको अब हमने रुपीज में सॉरी पैसे में बनाना है ना, तो हम ये 100 इसके नीचे लिखेंगे। अब हमारे पास कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो इधर ऊपर 2368, अब हमने इसको पैसे अलग करने हैं, रुपी अलग करने हैं, वो कैसे करेंगे, ये 2 जीरो नीचे हैं, 2 जीरो है तो ऊपर के 2 डिजिट हैं जो 6 और 8 2 हैं, इनके बीच में डॉट लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो हमारे पास आंसर आ गया ₹2368 पैसा। नीचे जितने जीरो हैं, पैसे हमेशा 2 डिजिट्स में होते हैं। समझ आई एकमप्रीत, यस और नो? अभी समझ आई? समझ आ गई? ओके, अभी एक और हम करेंगे। ऑल हैव रिटन इन नोटबुक?
No, we will do one more question. 205 पैसा, 205 पैसा. हम फिर करेंगे 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी. 1 रुपी. फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 205 पैसा, 205 पैसा इज इक्वल टू 205 और 100 को हम ऐसे फिर नीचे लाएंगे. कितने जीरो हैं हमारे पास? 2. तो मनी में आपको बताया पैसे हमेशा 2 डिजिट्स में आते. अब हम हमारे पास कितने आ गए? ₹2.05 पैसा. हमारे पास क्या आ गया? ₹2.05 पैसा. ओके. रुपीस को हमने नहीं देखना, हमने पैसों को देखना है कि हमने कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा के वो करना है. गुनहर, चेक योर फोन. सबको दिखाई दे रहा है आपके फोन में कोई प्रॉब्लम हुई होगी. चेक योर फोन. अभी सबको समझ आया ये सम? से राइट, यस और नो? ओके. एनीबडी जिसको नहीं समझ आया? अमानिया को समझ नहीं आया. अमानिया देखो, 205 पैसा है हमारे पास. जिन बच्चों को समझ नहीं आया ये सबके लिए है. पहले हम लिखेंगे 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी. फिर हमारे पास, हमें ये मालूम है 100 पैसा हो तो 1 रुपी बनता है. फिर हमने 205, हमारे पास क्वेश्चन है 205, ये इसको हम नीचे लाएंगे. फिर हमने 205 लिखा और इस 100 को इधर लाया हमने. तो हमारे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं. तो हमने उस जीरो के बीच में पॉइंट लगा दिया. हमारे पास आंसर आ गया ₹2.05 पैसा. हमने इजी वे में आपको करवाया. ठीक है, अभी आ गया समझ? ओके. ओके. बुक में क्यों लिख रहे हो? मैंने बोला था नोटबुक पे करिए. मैं सिर्फ आंसर भेजूंगी, आप चेक करेंगे. मैं होमवर्क कुछ नहीं भेजूंगी. अभी हमने ये एक्सरसाइज 3.1 भी हो गए कंप्लीट. अभी हम एडिशन पे आएंगे. एडिशन पे अभी ये ओपन पेज नंबर 112. पेज 112, राइट? पेज 112. एडिशन. अभी ये सम्स आप बुक पे ही करेंगे. सबसे पहले एवरीबडी विल डू A part in your book and write answer in chat box. Everybody will do. Anaita, what's your question? मैम मेरे को ये जो आपने कन्वर्ट इनटू पैसा है उसमें आपने जो सी पार्ट कराया था, मेरे को वो नहीं समझ आया है. 18 रुपीज कैसे आए हैं यहाँ पे? कौन सा 18 रुपीज? ये कौन सा क्वेश्चन था? कन्वर्ट इनटू पैसे का सी पार्ट. बेटा हमने 1800 पैसा था, आया था ना हमारे पास, आया था ना? तो फिर उसमें हमने 50 को प्लस करना है. क्वेश्चन में देखो ना, आई समझ आई? यस मैम. हाँ, 1800 था ना, तो 50 हमने जो क्वेश्चन में 50 पैसा भी तो प्लस करना है ना. आ गई समझ? ओके मैम. यस मैम. थैंक यू. आई कि नहीं? आ गई यस है? मैम. यस मैम. Okay, now do this sum. I am giving you time. Everybody will do right answer of only A part. Okay मैम. Okay. Right answer of only A part. Okay. Hurry up, hurry up. Yes. Answer is
₹8.20. Everybody will check. It is the correct answer. Now, B part do. B part. Everybody will do B part. Everybody will do B part. Yes. Good. Good. Shivya, Vidushi, Gunhar. B part. Yes. Answer is ₹9.89. Good. Well done. Now, do C part. C part. C part. ₹46.75. Good. Good. Now, next, D part. Everybody will do D part. Good. Well done. Shivya. Good. Ahana. D part. Everybody will do. Come on, come on. Good girls. Anahita, good. Daksha. Good. Oh, its correct answer is ₹829.80. Now E part. Everybody will do E part. Yes, good, good. Well done. Vanya, Sani, Ekampreet. Ashwik. Correct answer is ₹659.75. Well done. Well done. Good. Well done. Adhira, what have you written? Adhira? Do F part. Vidushi, correct? Yes. ₹3,580.50. Correct. Well done. Now last part. Last part. Come and write in chat box answer. Write answer in chat box. Last question. Good. Well done. Shivya, Gurshesh. Last answer is ₹7,609.23. Good. Now, okay. Look at the screen. Exercise. Write these sums in notebook. 3.2. Write question from your book. Arrange in columns and add. You will write question from your book. Arrange in columns and add. Question is, first question is rupees 75.75 plus rupee 85.65. It is the question. How will we do? Rupees and paisa. 75 paisa, 85 65 paisa. Now add these and write answer in chat box. You will do yourself and write answer in chat box. Come on.
Good. Vanya Sani. Good. Vidushi, correct answer. Good, good. Well done. Come on. Gunhar, correct. Anaita, Gurshesh. Good. Well done. Its correct answer is 161 rupees 40 paisa. 40 paisa. Okay. Now, write one more question. Write question number 2. It is the question. Write in your notebook. 463 rupees 60 पैसा प्लस, आप एक ही लाइन में लिखेंगे, यहाँ प्लेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ. Solve this sum and write answer in chat box. ये क्वेश्चन भी लिखेंगे और जैसे मैंने लिखा है पूरा आपने नोटबुक पे सुंदर सुंदर लिखना है. Good, come on. Yes, Vidushi, correct answer. Anahita, correct answer. Well done. Amania, correct answer. Well done. Ahana, check your answer. Ahana, check your answer. Yes, Tiara, correct answer. Okay. Well done. Its correct answer is 778 rupees 15 paisa. 778 rupees 15 paisa. Good. Well done. Now, last question. Write C part. Rupee 11865 प्लस रुपी, ये आपने एक ही लाइन में लिखना है. Now add this number. I am giving you time. Write answers. Come on, come on. Hurry up. Yes, Vidushi, correct answer. Well done. Everybody will write. Find the answer. Find the answer. Correct. Gurshesh, Gunhar, correct. Well done. Well done. Well done.
Correct. Yes, its correct answer is 1,8,118,6400. 11,864 rupees. Well done. Good. Everybody has done correct answer. Okay. Okay. Now, we will do this sum in your book. You will do this sum in your book. Very easy. Okay. Now, next exercise is also very easy. Exercise 3.3. You will do in your book. Later on, I will write the answers. Ekampreet, your answer is wrong. Check. Write X. ये आपने एक्सरसाइज बुक पे ही करनी है, नॉट इन नोटबुक. डू फर्स्ट सम. It is not addition, it is subtraction, minus. Minus. It's minus. Yes. Yes. Well done, Gania. Myra. Well done. Well done. Yes. First answer is 24.13. B part. No, everybody will do B part. Everybody will do B part. Yes. B part. Well done, Panika. B part is well done. Everybody is doing correct. 32 rupees 24 paisa. 32 rupees 24 paisa. Now, C part. Come on, C part. C part. No, Gunhar, do again. Gunhar, your answer is wrong. C part. Anahita, correct answer. Everybody will. Ahana, correct. What have you written? 010 not. Its correct answer is 60 rupees 10 paisa. Now, I am giving you time. Do D part. D part. D part. Beta, write C, D, which are doing. कोई B लिख रहा है, कोई C लिख रहा है. I am asking about D part. Yes, Anahita, correct. No, correct. Not correct, बेटा. आप क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, करेक्ट है आपका. ठीक 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 है बेटा आपका. गुरशेष नॉट. ट्यारा रॉन्ग. कैसे कर रहे हो बेटा? सिर्फ अनाहिता ने करेक्ट किया है अभी. मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ डी पार्ट. फाइजा, करेक्ट आंसर. करेक्ट. एवरीबडी विल डू. ट्यारा रॉन्ग आंसर.
Solve again. Ashwik, correct answer. Panika, correct. Ahana, correct. Ekampari, correct. Gunhar. Now, its correct answer is 38 rupees 15 paisa. 38 rupees 50 paisa. Okay, do E part. E part. Everybody will do E part. E part, everybody will do. Correct. E part, 28 rupees 85 paisa. 28 rupees 85 paisa. Now F part. F part. F part. Everybody will do. Correct. Vanya Saini. Correct. Correct answer. Anaita, do again. Wrong answer. Gurshesh, wrong answer. Everybody will do F part. F part. Anahita, correct answer. Panika, wrong. Its correct answer is 136 rupees 1 paisa. Now, GHIJ you will do yourself. GHIJ you will do yourself. Okay. आपको मैं होमवर्क नहीं भेजूंगी, आपको जो हमने क्लास में सम्स किए हैं एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 वही भेजूंगी और आप क्रॉस चेक करेंगे आपने ठीक से कॉपी किए हैं कि नहीं. ओके, बाय बाय.